Hello everyone, my name is Shubham and here we are in the 12 minutes of CLAT, right? आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं which is going to have two parts, है ना? Before we start कुछ disclaimers बता देता हूँ, है ना? This video is going to have two part. Reason बड़ा simple है. अभी तक जो हमारे पास available information है, that information about this particular topic, India-US trade deal, is a framework. Yes. तो उन्होंने एक फ्रेमवर्क जो है वो सेट किया है फाइनल डील्स के टर्म्स एंड कंडीशन दे माइट टेक सम टाइम so we are going to discuss that as well, right? First thing. Second thing, this is going to be a bit, what we can say, bhara bhara sa video, right? It's going to have tons of content written at this particular site because the topic is quite controversial, quite political as well, so we decided to keep it as it is, right? So whatever the statement from the American side is being given, whatever the statement from the Indian side is being given in their respective press release, we are going to keep it as it is, है ना? And then we will try to figure out कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, उसमें क्या मतलब निकल सकते हैं, ठीक है? सेकंड के बाद जो मेन पर्टिकुलर लास्ट में होने वाला है, दैट इज नॉट वी लाइक दैट इज समथिंग जिसके लिए मैं आपको पहले से क्लियर करूं. We are going to have certain particular questions based on criticism that is going on the deal, based on the praise that is going on the deal. We are strictly stick to the facts, and we are strictly going to discuss whatever is being said. We are not going to discuss any political aspect. I know you were waiting कि भैया कहीं से political निकल के आ जाए. नहीं करने वाले हम डिस्कशन पॉलिटिकल उसमें, राइट? ये चीज ध्यान रखना. दूसरी चीज, यस, कुछ पर्टिकुलर जो एक्सपर्ट्स ओपिनियन है, जो देयर आर सम पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट इज बीइंग रेज्ड ऑन दिस डील. द मोमेंट आई एम रिकॉर्डिंग, है ना, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैड ऑलरेडी रिकॉर्डेड इट, दिस टॉपिक, but I believe I take time because I want to study it. I want to listen to the expert. I want to understand the implication of every particular term. So yes, it takes some time. So हम लेके आए, and parallelly there is a deal that happened with the Bangladesh, right? And बांग्लादेश के साथ जो डील हुई है उसके लिए भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज आए हैं. So those deals, that particular deal, US Bangladesh trade deal, that might affect more with the Indian deal. तो वहां पे भी कुछ चीजें चेंजेस में आने वाली हैं. So clear cut, it's not going to be any political video. We are going to discuss it according to the facts and implications जो उनके उससे निकल के आते हैं. So let's start what we are having today, है ना? तो सबसे पहले, in the early February 2026, India and United States announced the historic interim trade agreement aimed to lowering the tariffs and resolving long-standing trade tensions. So first thing, they actually decided to go on in this particular thing क्योंकि वो अपने ट्रेड टेंशन कम करना चाहते थे और जो टैरिफ्स उनने एक दूसरे पे लगा रखे थे उसको कम करना चाहते थे. सेकंड, दिस इज अ फ्रेमवर्क, है ना? मैं तुम्हें फिर बता दे रहा हूँ, दिस इज अ फ्रेमवर्क जो यहाँ पे दिया हुआ है, राइट? उप्स, सॉरी, है ना? दिस इज अ फ्रेमवर्क विच यू आर टॉकिंग अबाउट. और वो फ्रेमवर्क जो है वो कहीं ना कहीं अभी निकल के आया है. एंड दिस इज अ फ्रेमवर्क, दिस फ्रेमवर्क इज व्यूड as a precursor of the comprehensive US India bilateral trade agreement, that is BTA. तो उनका एक पर्टिकुलर अभी एक फाइनल टर्म्स एंड कंडीशन के साथ जो स्टेटमेंट आना है वो अलग है. देयर इज अ जॉइंट स्टेटमेंट जो आया है फॉर द फ्रेमवर्क. जो फाइनल टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ होगा वो आएगा. यस, दे हैड मेंशन्ड देयर पर्टिकुलर पार्ट कि क्या क्या फायदे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, तो उस पर हम बात करेंगे. सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूएसए का क्या स्टेटमेंट था. यूएसए ने अपने पर्टिकुलर स्टेटमेंट में क्या कहा था. मैंने बोला था बहुत सारा लिखा हुआ आएगा, तो डोंट गेट प्रॉब्लम, डोंट गेट लाइक बोर, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हम किसी भी तरीके से इसको नेगेटिवली मैनिपुलेट करें या नेगेटिवली उसको सेट करें. लेट्स कीप इट एज इट इज, राइट? सो फर्स्ट थिंग जो हम बात करना चाहेंगे वो चाचा की करना चाहेंगे, राइट? द चाचा ऑलरेडी सेट कि माय टैरिफ्स आर वर्किंग, my tariffs are something which are making America great again, right? Is it British or American accent? I don't know, but it is something, right? He is the one who actually declared this particular agreement. He first tweeted, then White House tweeted, not tweeted, he put that statement on his own social media platform, that is Truth Social. Then White House का tweet आया, and then after that the Indian government के side से PM and Ministry of Commerce की तरफ से पीयूष गोयल का भी आया, and then the discussion started. It was like late night.
So technically, the discussion, the announcement came with the American Standard Time, not Indian Standard Time. तो मैं बता रहा हूँ. Now, moving on to the next one. यूएस के स्टेटमेंट में जो लिखा हुआ आया है, जो व्हाइट हाउस के प्रेस रिलीज में लिखा है, उसकी बात करेंगे. इंडिया विल एलिमिनेट और रिड्यूस टैरिफ्स ऑन ऑल द यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स, राइट, एंड अ वाइड रेंज ऑफ यूएस फूड्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स. यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को उन्होंने इंक्लूड किया है, इंक्लूडिंग द ड्राई डिस्टिलर्स ग्रेन्स, रेड शोरगम्स, एनिमल फीड्स, राइट, लाइक जो ट्री नट्स होते हैं, फ्रेश एंड प्रोसेस्ड फूड होते हैं, सोयाबीन ऑयल, वाइन एंड स्पिरिट एंड सम एडिशनल प्रोडक्ट्स. तो पहला जो पर्टिकुलर लाइन था उसमें यही था कि उन्होंने ये बोला कि इंडिया विल एलिमिनेट और रिड्यूस. ये दो बहुत जरूरी चीजें. एलिमिनेट का मतलब है खत्म कर देना, राइट. रिड्यूस का मतलब है कम कर देना. तो यहाँ पे अभी भी ये चीज है कि इंडिया विल आइदर एलिमिनेट और रिड्यूस द टैरिफ्स ऑन यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स, राइट, एंड वाइड रेंज ऑफ यूएस फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स. तो उन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में क्या है, जो ड्राइड डिस्टिलरीज ग्रेन्स है वो है, रेड शोरगम है फॉर द एनिमल फीड्स है, राइट, ट्री नट्स हैं, फ्रेश पर्टिकुलर प्रोसेस्ड फूड है, सोयाबीन ऑयल है, वाइन्स है, स्पिरिट्स है, सम अदर एडिशनल प्रोडक्ट्स. उन्होंने नाम मेंशन नहीं किए. द सेकंड, US state will apply a reciprocal tariff rate of 18%, right, under Executive Order 14257 on the April 2, 2025, regulating imports with a reciprocal tariff to rectify trade practices that contribute to a large and persistent annual United States goods and trade deficit. तो जो अप्रैल 2025 में जो उन्होंने वो दिया था, ऑर्डर पास किया था, उसको उन्होंने रेफरेंस करते हुए बोला है कि दिस विल, द स्टेट विल अप्लाई द रेसिप्रोकल टैरिफ ऑफ द रेट ऑफ 18% ऑन दैट पर्टिकुलर स्टेट स्टांस. एंड उसके आगे उन्होंने लिखा गया एज अमेंडेड ऑन द ओरिजिनेटिंग गुड्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग टेक्सटाइल एंड अपीयरल्स, राइट, leather and footwear, plastic and rubbers, organic chemicals, home decor, artisanal products, and certain machinery, and subject to the successful conclusion of the Indian Interim Agreement, right, will remove the reciprocal tariff on the wide range of goods identified in the potential tariff adjustment for aligned partners that annexed to Executive Order 14346 of the September 5, 2025, modifying the scope of reciprocal tariff and establishing the procedure of implementing trade and securities agreement as amended, including the generic pharmaceutical, gems and diamonds and aircraft part. ध्यान देना, यहाँ पे एक पर्टिकुलर लाइन है जिसको मैं वापस वो करना चाहूंगा, राइट, and subject to the successful conclusion of the interim agreement will remove the reciprocal tariff on the wide range of goods identified in the potential tariff adjustment for aligned partners, राइट. यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना कि वो ये कहना चाहता है कि कहीं ना कहीं उनके पास जो टैरिफ एडजस्टमेंट है, राइट, उसको वो नए तरीके से देखेंगे. और उन्होंने सितंबर के एक ऑर्डर का वो किया हुआ है. इफ यू डोंट रिमेंबर, दिस इज द टाइम जब हमारे ऊपर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ ऐड किया गया था बिकॉज वी वर बाइंग द रशियन ऑयल्स. उन्होंने फार्मास्यूटिकल, जेम्स, ज्वेलरीज, एयरक्राफ्ट पार्ट, सम अदर पर्टिकुलर चीजें मेंशन की जिसके लिए वो इंडिया मार्केट जो है वो खोलेगा. वहां पे जो है हमारे पास रिलेटिवली लोअर टैरिफ होगा. फिर अमेरिका की तरफ से जो गुड्स एंड ट्रेड्स होगा उसमें लेदर, टेक्सटाइल, अपैरल, फुटवेयर, प्लास्टिक, रबर्स, ऑर्गेनिक केमिकल, कई ऐसी चीजें होंगी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इन्होंने एक और पर्टिकुलर चीज होगी, इंडियन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया कमिट टू प्रोवाइड ईच अदर प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस in the sector of respective interest on the sustained basis. तो उनका ये कहना है कि यूएस एंड इंडिया, दे आर कमिटिंग ईच अदर टू प्रोवाइड the preferential market access in different sector for their own interest for the sustained basis. मतलब ये है कि अगर इंडिया में अमेरिकन गुड्स आते हैं या अमेरिका में इंडियन गुड्स आते हैं, तो दे आर गोइंग टू हैव प्रेफरेंसेस इन देयर मार्केट, राइट. तो वो प्रेफरेंशियल पर्टिकुलर बेसिस पे प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस जो है वो देंगे एक दूसरे को. दे आर कमिट टू दिस. यूएस इंडिया विल एड्रेस द नॉन टैरिफ बैरियर्स दैट अफेक्ट द बायलैटरल ट्रेड. नाउ ये एक पर्टिकुलर वो है जो अपने को वो है कि ऐसे कौन से नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं जो हमारे इंडिया और यूएस के बीच में टैरिफ और ट्रेड्स को क्या करते हैं, बायलैटरल ट्रेड को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं. आगे उन्होंने बोला इंडिया ऑल्सो एग्रीज to address long-standing barriers on the trade
In the US, medical devices, right? कहाँ गया? Right? Eliminating restrictive import licensing procedure to like delay market access for impose quantitative restriction, information and communication technology, right? And उसके अलावा उन्होंने लिखा हुआ है कि जो goods हैं और determined to view the toward the positive outcome within 6 months of entry into the force. तो उनका ये कहना है कि जैसे ही पर्टिकुलर चीजें इंडिया की सॉरी यूएस की तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी के जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट, जो गुड्स होते हैं, उनको अब एक पर्टिकुलर पॉजिटिव और प्रेफरेंशियल वो दिया जाएगा। जैसे ही वो मार्केट में एंटर करेंगे इंडिया के, वहां पे विदिन 6 मंथ्स उनको जगह मिलना शुरू हो जाएगी। दे ऑल्सो लाइक कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है यूएस का, तो अब अगर इंडिया और यूएस के बीच में राइट इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड्स की बात की जा रही है कि भाई ऐसा नहीं होगा कि भाई काम चला हो जाए। तो इंडिया की तरफ से जो इंपोर्ट आएगा या जो यूएस की तरफ से इंपोर्ट आएगा, या दोनों के बीच से जो म्यूचुअल एक्सपोर्ट होगा, उन दोनों में बायलैटरल स्टैंडर्ड्स जो है ना, उनको वो करना पड़ेगा सेट, कि ऐसा नहीं हो। दैट इज द रीजन कि शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये बात बोली थी कि नाउ वी नीड टू हैव अ क्वालिटी एक्सपोर्ट। गेटिंग राइट? उन्होंने एक और चीज भी बोली है, दैट इज इंडिया ऑल्सो एग्रीज टू एड्रेस लॉन्ग स्टैंडिंग नॉन टैरिफ बैरियर टू द ट्रेड इन यूएस फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। दिस इज द स्टेटमेंट जो सबसे ज्यादा मुश्किल है ना समझना, राइट? उनका ये कहना है कि इंडिया ऑल्सो एग्रीज टू एड्रेस लॉन्ग स्टैंडिंग नॉन टैरिफ बैरियर टू द ट्रेड इन यूएस फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, राइट? क्या ये कहीं ना कहीं एक लाइक साइन सिंबल है जिस पर डिबेट चल रही है कि इंडिया और यूएस एक दूसरे के लिए जो फूड एग्रीकल्चर मार्केट है उनको म्यूचुअली प्रेफरेंशियल करेंगे, नहीं करेंगे? अभी उस पर बात चल रही है, उस पर लास्ट पे बात करेंगे, है ना? द यूएस एंड इंडिया विल वर्क टुवर्ड द फर्दर एक्सपांडिंग market access opportunities through the negotiation of the BTA. So अभी उनके लिए further negotiation और further जो discussion है उसके लिए भी काम करेंगे। US also affirms that if intend to take into the consideration during the negotiation of BTA, India's request that US continue to work to lower the tariff on the Indian goods. उनका ये कहना है कि अगर वो हमारे इंटेंट बायलैटरल में मतलब जो हमारा पॉजिटिव इंटेंट है बायलैटरल को लेके, अगर वो कंटिन्यू रहा, तो इंडिया की जो रिक्वेस्ट है टू लाइक फॉर द यूएस टू लोअर द टैरिफ्स ऑन इंडियन गुड्स, हम उस पे भी आगे चल के बात करेंगे। सम क्रिटिकल वन जो ये वाला है, इसके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल वो हो रही है। इंडिया इंटेंड टू परचेस $500 बिलियन ऑफ यूएस एनर्जी प्रोडक्ट, aircraft and aircraft part, right? Precious metal, technology products, coking coal over the next 5 years. Yes, यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन उठाया है लोगों ने कि क्या इंडिया के पास नेक्स्ट 5 इयर्स में $500 बिलियन का जो पर्टिकुलर वो है ट्रेड है, तो इंपोर्ट कैपेसिटी है फ्रॉम अमेरिका, वो कैसे डेवलप हो? फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो इंडिया और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड है उसमें लाइक अप्रोक्सीमेट ऐसा सीन है कि इंडिया जो है वो लाइक ऑलमोस्ट लाइक 60 70 80 बिलियन के ट्रेड सरप्लस में रहता है। एंड इफ इन दैट पर्टिकुलर केस इंडिया एक्सपोर्ट्स मोर, राइट, एंड इंपोर्ट लेस, दैट इज द ट्रेड सरप्लस। एंड प्रॉब्लम ये है कि अगर हम $100 बिलियन के उससे भी देखें नेक्स्ट 5 इयर्स में, तो अगर हम $100 बिलियन का इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे तो हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, और इन दैट पर्टिकुलर केसेस जो प्रॉब्लम्स हैं वो अराइज होंगी, क्योंकि हम ट्रेड सरप्लस से नेगेटिव ट्रेड में चले जाएंगे, हम लॉस में चले जाएंगे, राइट? एंड इवन दो यहाँ पे जो मेंशन्ड है उसमें एक एनर्जी प्रोडक्ट्स है, राइट? एनर्जी प्रोडक्ट्स इन समथिंग जस्ट लाइक फॉर ऑयल, पेट्रोलियम, न्यूक्लियर एनर्जी, सम अदर पर्टिकुलर थिंग। तो अगर ऐसा है तो फिर रशियन ऑयल के साथ जो पर्टिकुलर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है उस पर अभी और डिबेट होनी बाकी है, right? Yes. India and US also had like decided to increase the trade of technology product, right? जो graphic processing unit है, कुल मिला के silicon chips, ICs, data centers and some other particular technological cooperation, उसके लिए भी उन्होंने बात की कि हम आगे बढ़ेंगे। US India also agrees to strengthen the economic security alignment to enhance the supply chain resilience and innovation through the complementary action to address non-market policies to the third parties. ये कोई समझाए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप थोड़ा सा टाइमलाइन पे जाओ, है ना, टाइमलाइन में अगर आप जाओगे तो जस्ट जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने, एट दैट टाइम ही कॉल्ड फॉर सेवरल लीडर्स कि भैया हमारे वो सेरेमनी में आओ। देन आफ्टर लाइक फ्यू डेज ही गेट अ चार्ट कि हमारे ऊपर कौन कौन कितना कितना टैरिफ लगा रहा है, हम उनके ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, ये वो ऐसा वैसा। चाइना के ऊपर भी इन्होंने कोशिश की, बाकी सारे सैंक्शंस भी कोशिश किए, इंडिया के ऊपर भी कोशिश की। चाइना ऑन द अदर हाफ, इट वाज लाइक चाइना वाज वेल प्रिपेयर्ड आई गेस,
दैट इज द रीजन कि अभी भी चाइना के पास अप्रोक्सीमेट, मैं अभी कल की ही वो पढ़ रहा था रिपोर्ट, तो उसमें $1.2 ट्रिलियन का ट्रेड सरप्लस है चाइना के पास, इवन हैविंग लाइक दैट मच ऑफ टैरिफ। तो चाइना वाज वेल प्रिपेयर्ड। नाउ थर्ड पार्टीज जो हैं सप्लाई चेन को मेंटेन करने के लिए, जो थर्ड पार्टीज है उसमें मेनली जो पर्टिकुलर कंसर्न निकल के आता है, एक्सपर्ट्स मानते हैं वो है चाइना। Apart from this, some of them saying कि they that is that third party term is also somewhere like addressing the Russia's issue as well. अगर आप ध्यान से देखो तो कह रहे हैं the US and India agrees to strengthen the economic ties, correct? To security alignment to enhance the supply chain resilience and innovation through the complementary action to address the non-market third policy parties as well as the cooperation inbound and outbound investment review and export control. तो ये कहीं ना कहीं मार्केट में जो थर्ड पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट है, फॉर एग्जांपल चाइना से हमारा ट्रेड जो है वो भी उसमें जाता है, ट्रेड डेफिसिट में ही जाता है, अमेरिका का भी जाता है। तो थर्ड पार्टी के लिए वो इसी तरीके की उसमें बात कर रहे हैं। The US and India works toward the further expanding of the market access opportunities through the negotiation in BTA. So there is a still chance in the future. The US affirms that they intend to take into the consideration during the negotiation India's request to lower the goods, ये भी वो आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये था किसका स्टेटमेंट, अमेरिका का स्टेटमेंट। सो मोटा मोटा हम कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं व्हाट दे सेड। फर्स्ट जो सबसे मुश्किल और सबसे आसान था, मुश्किल फॉर इंडियाज इंपोर्ट एंड आसान टू अंडरस्टैंड कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में $500 बिलियन का हमें इंपोर्ट करना है अमेरिका से, whether that is energy product, technology, aircraft, parts वगैरह वगैरह। एंड सेकंड थिंग, जो पर्टिकुलर कंडीशन है जिसमें टैरिफ्स कम ज्यादा हुए हैं, उसकी अगर बात करें तो यस, इंडिया की तरफ जो टैरिफ लगे थे दैट वाज 50%, 50% 18% हुए हैं। बट जो उनकी तरफ से कहना है कि वो फ्री फ्लो में अमेरिकन गुड्स आएंगे इंडियन मार्केट में, दैट मीन 0% टैरिफ के साथ, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। पहले इंडिया के जो टैरिफ्स होते थे वो 3 4 5% के ब्रैकेट में होते थे, राइट? इन सर्टेन प्रोडक्ट्स 3%, सम 4%, सम 5%। अमेरिकन जो गुड्स होते थे उन पे वो 15%, 16%, 17%, 18% लगता था, डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरीज। तो अगर हम 3 से 18 में चले गए हैं टैरिफ में, तो टेक्निकली द टैरिफ इज बीइंग इंक्रीज्ड। यस, द टैक्स इज ऑन अस, टैरिफ ऑन अस इज बीइंग इंक्रीज्ड, राइट? एंड अमेरिकन अगर उससे कम पे आ गए हैं, right, even if the zero duty we are talking about, then they are into the somehow they are in what we can say profit, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ज्यादा वो मिला हुआ है। नाउ इंडिया का जो स्टेटमेंट आया, जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है उनसे, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए उसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का जो है वो रेफरेंस था एंड काफी कुछ चीजें निकल के आई थी। तो व्हाट दे सेड इज क्वाइट सिंपल। उन्होंने सबसे पहले अपने स्टेटमेंट पे लिखा कि व्हाट आर द आउटकम्स, द की आउटकम्स। तो की आउटकम्स में इंडिया सिक्योर्ड द प्रेफरेंशियल एक्सेस टू द US $30 ट्रिलियन मार्केट। उनका ये कहना है कि नाउ वी गॉट द प्रेफरेंशियल एक्सेस इन द $30 ट्रिलियन मार्केट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। Textile apparel gained tariffs cut from 50 to 18%, silk securing 0% duty access in USD $113 billion market. तो यूएस के $113 बिलियन के मार्केट में सिल्क गॉट 0% ड्यूटी एक्सेस एंड टेक्सटाइल एंड अपैरल टैरिफ कट्स फ्रॉम 50 टू 18%, जो पहले 3 4% होते थे, ध्यान देना। Next one is machinery export sees tariff reduced from to 18%, opening the opportunities of $417 US market. तो हमारा जो मशीनरी एक्सपोर्ट है उसमें भी टैरिफ कम होकर 18% हो गया है, एंड दैट गिव्स अस अपॉर्चुनिटी टू एक्सेस द $477 बिलियन यूएस मार्केट। नेक्स्ट, यूएस डॉलर 1.36 बिलियन of Indian agriculture export receive zero additional USDT access. So $1.36 बिलियन का जो इंडियन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है उस पर 0% टैरिफ लगी हुई है एडिशनल ड्यूटी से, राइट? की प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्पाइसेस, टी, कॉफी, फ्रूट, नट्स एंड प्रोसेस्ड फूड ग्रेन, जीरो ड्यूटी ट्रीटमेंट, राइट? सो यहाँ पे जो हमारे की प्रोडक्ट्स हैं विच इंक्लूड स्पाइसेस, कॉफी, टी, नट्स, fruits, processed food grains, they get the zero duty treatment in the US market. Highly sensitive sector such as dairy, meat, poultry, and cereals remain fully protected. According to the government of India, कि जो हमारा market local है dairy, meat, poultry and cereals के लिए, that is completely protected. अब इस completely protected का क्या मतलब है? तो technically वो ये कहना चाहते हैं कि जो बाहर से US से आने वाले goods हैं, right, they are not technically going to enter in our market directly. अब for example एक example मुझे
एक इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने दिया था कि जैसे जो मक्का है, लाइक मक्के के साथ प्रॉब्लम ये है कि मक्का हम डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वहां पे वो तोड़ मोड़ के मक्के को लाइक क्रिप्स करके और लाइक छोटा छोटा करके दे सेंड इट टू द फीड, कि जो जानवर हैं, जो भी एनिमल्स हैं दैट वी एक्चुअली गेट इनटू द एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, उनके लिए चारा बना के बेच सकते हैं। सो दे कैन नॉट सेंड मेज डायरेक्टली टू आवर मार्केट, बट दे कैन सेंड द बाय प्रोडक्ट्स लाइक दिस। उनका ये कहना है कि अगर दे आर प्रोटेक्टेड देन उस पे भी हमें कहीं ना कहीं पे एड्रेस मिलना चाहिए था, विच वी डिडंट गेट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, what India gets, that is the same thing that they wrote in PIB's information bulletin. Okay, they said highly competitive rate 18% on the 900 billion worth of global import of the US. तो 900 बिलियन डॉलर के जो ग्लोबल इंपोर्ट है यूएस की तरफ से, उसमें 18% टैरिफ जो है वो मिला। कॉम्पिटिटिव रेट ऑफ टैरिफ, क्योंकि जो मेनली हमारे पर्टिकुलर वो है राइवल्स हैं हमारे मेन एक्सपोर्ट में, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश, वियतनाम, चाइना, दे आर हैविंग हायर टैरिफ, दे आर हैविंग हायर टैरिफ ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। तो हम रिलेटिवली भले 1-2% का ही सी, बट वी गॉट अ कॉम्पिटिटिव रेट। तो इससे फायदा ये होगा कि इफ देयर इज अ लाइक टी शर्ट which is costing let's say 110 rupees from the Bangladesh when it get exported to US, and that might cost us the 107 108 rupees, right? तो वो हमारे लिए तब भी प्रेफरेंशियल होगा। तो हमें थोड़ा सा टैरिफ जो मिला है, टैरिफ रेट रिड्यूस होने के कारण थोड़ा सा प्रेफरेंसेस और थोड़ा सा फाइनेंशियल बेनिफिट मिला है। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। The zero duty on $150 billion worth of global import of the US. तो कुछ $150 billion के जो ग्लोबल इंपोर्ट्स हैं यूएस की तरफ से, विच दे एक्चुअली चार्ज जीरो, है ना, उसमें भी हमें मार्केट एक्सेस मिला है। नो एडिशनल ड्यूटीज ऑन द $720 billion वर्थ ऑफ global import for the US. The exemptions continue to the $350 billion worth of global import for the US. The preferential treatment on 232 tariffs. तो 232 particular categories and products में हमें preferential treatment मिलेगा। I know that meme is you didn't get it, right? Don't get into the maths. That's what they are saying, right? उनका ये कहना है कि don't get into the maths. Maths are never helped Einstein discover gravity. यहाँ पे भी मैथ्स से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हम लॉजिक समझे कि जो यूएस का टोटल इंपोर्ट है उसमें हमें क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। सो फर्स्ट बेनिफिट दैट वी कैन गेट इज प्रेफरेंशियल एक्सेस, कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो प्रेफर किए जाएंगे मार्केट एक्सेस के लिए। सेकंड, वी गेट रिलेटिवली लोअर टैरिफ, right, when it comes to our like what we can say competitor like China, Vietnam, Bangladesh, right? तो हमारी कॉस्ट थोड़ी सी कम हो जाएगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में जो उनका इंपोर्ट है उसमें कहीं ना कहीं हमें बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस दे मेंशन ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफरेंट थिंग। फॉर एग्जांपल दे टॉक अबाउट द रेसिप्रोकल टैरिफ। They were early as high as 50 on several Indian products. Those have now been substantially reduced. Of the total export of US dollar 40.96 billion were subjected to reciprocal tariff. तो अब ये थोड़ा सा घुमा फिरा के कहने वाली स्टेटमेंट है। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि पहले 50% के आसपास टैरिफ लग रहा था कुछ प्रोडक्ट्स पे, अब वो सब्सटेंशियली कम हो गया है। टोटल जो एक्सपोर्ट है $40.96 बिलियन का, वो अब रेसिप्रोकल टैरिफ के अंडर सब्जेक्ट होगा 18% के अंडर, राइट। हम टोटल 80 बिलियन के आसपास का हमने एक्सपोर्ट किया था, उसमें से लगभग $41 बिलियन जो है वो 18% रेंज में डायरेक्टली आ गया। अंडर द एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स, $30.94 बिलियन एक्सपोर्ट has been reduced to 50 to 18%, while tariff on another $10.03 billion has been reduced to the 50 to 0. तो ओवरऑल फैशन में ये रेसिप्रोकल टैरिफ था जिसमें एक पर्टिकुलर पार्ट में 18% है, एक पर्टिकुलर पार्ट में 0% है। दिस मींस इंडिया कुड शेयर व्हाट वी कैन से गुड एंट्री इन द यूएस मार्केट। यस, उनका थोड़ा सा रिलेटिवली लोअर टैरिफ है, कुछ में बहुत ही एकदम जीरो है, कुछ में 18% है। तो इंडिया कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंट प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस जो है उसमें आगे निकल जाएगा बाकियों से, राइट। देन टेक्सटाइल टैरिफ ऑन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हैव बीन रिड्यूस्ड टू 50 to 18%, while silk receives a 0% duty access, opening enhanced opportunity for the 113 billion US dollar US market. Agreement is delivering significant gain for India's leather and footwear sector, right? Positioning the country as the most preferred supplier to the US market. Tariff on this particular is being reduced to 50 to 18%, और यहाँ पे यूएस डॉलर का जो मार्केट है यूएस का वो $42 बिलियन का। तो हमारे पास 18% के रेट पे मोस्ट प्रेफरेंशियल सप्लायर के फॉर्म में हमें एक एक्सेस मिलेगा किसमें,
फुटवेयर, लेदर, इन सारी इंडस्ट्री में, जिसका यूएस में टोटल मार्केट $42 बिलियन का है। They also mentioned tariffs on gems and jewelry export has been reduced to 50 to 18%, providing preferential access to the US market, which is valued at $61 बिलियन। जो जेम्स एंड ज्वेलरी है वहां पे भी जो टैरिफ्स है वो 50 से 18% कम कर दिए गए हैं, और उससे हमें प्रेफरेंशियल एक्सेस मिलेगा यूएस के $61 बिलियन मार्केट में। आगे उन्होंने लिखा, जो होम डेकोर है एक्सपोर्ट हैज बीन रिड्यूस फ्रॉम 15 टू 18%, वो हमारे लिए $52 बिलियन का है, जहां पे हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस 0% ड्यूटी एक्सेस ऑन बीइंग सिक्योर टू द प्रोडक्ट कवरिंग यूएस मार्केट वर्थ ऑफ $13 बिलियन, जिसमें सीट्स हैं, शैंडलियर्स हैं, इल्यूमिनेटेड साइंस, पार्ट्स ऑफ लैंप्स हैं, बाकी सारी चीजें। एग्रीमेंट प्रोवाइडेड सिग्निफिकेंट बूस्ट टू द इंडियन मशीनरी, अगेन सेम चीज 50 से 18% कर दिया गया, जिसमें $477 बिलियन का मार्केट है। India maintains trade surplus of 1.3 billion in agriculture trade with US, with export $3.54 billion and import of $2.1 billion in the 2024। यहाँ पे उन्होंने बताया कि एग्रीकल्चर में हमने एक ट्रेड सरप्लस ऑफ $1.3 बिलियन का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में यूएस के साथ डील किया, गेन किया, जिसमें $3.4 बिलियन जो है वो यूएस को हमने एक्सपोर्ट किया है, एंड इंपोर्ट हमने वहां से $2.1 बिलियन लिया है। सो why I made this, why I mentioned this particular point here is very important। इंडिया एंड अमेरिका के बीच में एग्रीकल्चर ट्रेड में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट नया नहीं है, बट आज से नहीं है। लाइक अगर मैं 1992, 93, 94 की बात करूं, आफ्टर द ग्लोबलाइजेशन देयर वाज दिस पर्टिकुलर टॉक दैट वाज ऑन कि भाई साहब, अगर एग्रीकल्चर एंड डेयरी सेक्टर खोल दिया गया तो यहाँ के लोकल किसानों को बहुत नुकसान होगा। तो वहां से लेके अब तक, एंड दैट वाज द टाइम ऑफ मुरली मनोहर जोशी, अटल जी, एंड वहां से अभी तक भारतीय जनता पार्टी एंड एनडीए गवर्नमेंट हैज प्रोटेक्टेड द राइट्स ऑफ फार्मर फ्रॉम द आउटसाइड मार्केट। तो यस, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, एंड फिर उन्होंने बोला कि दे विल सप्लाई जीरो एडिशनल ड्यूटी ऑन इंडियन एक्सपोर्ट, $1.36 बिलियन। बेनिफिशियरी प्रोडक्ट इंक्लूड स्पाइस टी, स्पाइसेस टी, कॉफी एक्सट्रैक्ट, कोपरा, कोकोनट ऑयल, वेजिटेबल ऑयल। तो इन्होंने बता दिया कि किस किस चीज में हमें प्रेफरेंसेस मिलेगी। नाउ यहाँ भी ये खत्म नहीं होता, राइट। जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है उसमें क्या क्या चीजें हैं, तो सबसे पहले इसको अपन पढ़ लेते हैं, ज्यादा पॉइंट उसमें आता है, द म्यूचुअल डिजिटल ट्रेड फ्रेमवर्क, और उससे होने वाले इंडिया को बेनिफिट, राइट। तो डिजिटल फ्रेमवर्क की जब हम बात करते हैं तो वो वही आईसीटी है, कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला जो सीन है, उसमें लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, राइट, improved access to the digital services, greater US investment in India's digital ecosystem, increased SME participation in cross-border digital trade, strengthen India's service export, और accelerate growth to the digital startups, cloud computing, artificial intelligence, fintech and health tech sector। ओवरऑल फैशन में उन्होंने स्पेसिफिक सेक्टर्स और उनमें मिलने वाले इन्वेस्टमेंट और बाकी सारी चीजों को एक साथ एड्रेस कर दिया कि हाँ, हमें प्रेफरेंशियल्स भी मिलेंगे, हमें दूसरी चीजें भी मिलेंगी, एंड बाकी सब। एग्रीकल्चर में एक और पर्टिकुलर चीज उन्होंने वो किया है कि कुछ $1 बिलियन के अराउंड जीरो रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो अवॉइड किया गया अनसर्टेनिटी में, प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी एंड प्रिडिक्टिविटी टू द इंडियन फार्मर्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, zero additional duty access for the industrial export valued at $38 billion to the US under sections 232 provisions, zero additional duty to apply to aircraft, machinery and other particular generic drugs, pharmaceutical ingredients and elementary auto part। फिर बाकी सब जो है वो टेक्निकल फ्रेमवर्क की बात है जो हमने यहाँ पे की। ये हो गया दोनों के बीच में होने वाला ट्रेड। अंडरस्टैंड, यूएस एंड अमेरिका की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आए उसमें कुछ डिफरेंट इम्प्लीकेशंस है, राइट, एंड टेक्निकली both are not very clear up to the point। Americans and White House want to show that we won the deal। The Indian government and Indian side shows that no, we won the deal, right? एंड प्रॉब्लम ये है कि जब तक हमें एक एग्जैक्ट टर्म्स एंड कंडीशन का क्लैरिटी नहीं मिलता तब तक हम ये चीज नहीं कह सकते कौन जीता। बट अगर सच में इंडिया के ट्रेड्स पे, इंडिया के मतलब प्रोडक्ट्स पे 18% के आसपास टैरिफ लग रहा है, तो सम हाउ वो 15%, 14% या 13% डिपेंडिंग अपॉन सेक्टर ज्यादा है। ओके, सो दैट इज गोइंग टू बी अ लॉस फॉर इंडिया। तो हमारा जो भी ट्रेड सरप्लस है वो कम हो जाएगा, दैट्स फॉर श्योर। सेकंड, अगर जो कंडीशंस है, मैं ओवरऑल अगर बात करूं, हम अभी यहाँ पे क्रिटिसिज्म में लेके आएंगे उस पर्टिकुलर पार्ट को।
किधर गया? जस्ट अ मिनट। हाँ। अरे रशियन ऑयल वाला कहाँ गया? अच्छा, मैंने लास्ट में डाल दिया, ठीक है। तो जो मेन क्रिटिसिज्म है, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट है, जिनके कुछ पॉइंटर्स मैंने सुने उनके उसमें इंटरव्यू में। तो ही सेड कि इंडिया वाज ऑलवेज इंडिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। ओके, ऑलवेज इंडिपेंडेंट इन द सेंस कि हमने हमेशा अपनी मर्जी से एक इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल बायलैटरल रिलेशन, इंटरनेशनल मल्टीलैटरल रिलेशन, इन सारी चीजों पे डिसीजन मेकिंग की। बट इफ द कंडीशन फॉर इंडिया अमेरिका बायलैटरल ट्रेड इज दिस कि हम रशिया से ऑयल नहीं खरीद सकते, देन इट इज समवेयर एन इंटेंशन ऑफ अमेरिका टू लाइक मेक इंडिया स्टे अवे फ्रॉम रशिया, या जो इंडिया की और रशिया की जो दोस्ती है उसको दूर करने का या खत्म करने के लिए इन्होंने स्टार्ट किया, राइट? सो प्राइमरली अगर मैं बात करूं तो हाउ इट हैपन एंड व्हाट इट हैपन, डिफरेंट पॉलिटिक्स उसकी बात नहीं करते, बट सबसे पहले वी लॉस्ट ईरान, दैट इज ऑयल, या जो अपना शाहबहार पोर्ट है उसकी बात करें, देन रशिया, रशिया की तरफ से भी जो एनर्जी सिक्योरिटी गैस एंड ऑयल के फॉर्म में मिलती है वो। तो दिस इज द स्टेप जहां पे अमेरिकन आर इंटरफेयरिंग इन आर फॉरेन पॉलिसी, एंड वी शुड नॉट लाइक कंप्लाई विद दिस। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि वी कैन नॉट ट्रस्ट ऑन अमेरिका एंड कंट्रीज लाइक अमेरिका एंड चाइना। दे आर द वन जिनको मौका परस्ती बहुत आती है, दे आर अपॉर्चुनिस्ट, राइट? उन्होंने ये भी बोला है कि कल को अगर एक साल बाद चाइना एंड अमेरिका दे गेट टुगेदर अगेंस्ट ऑल द पर्टिकुलर पावर्स, तो इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको एक्सेप्ट करने में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं। तो ये एक लाइक इनहैंस्ड एक पर्टिकुलर क्या कहना चाहिए, बहुत ही क्रिटिकल वो है पॉइंट है जहाँ पे हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को थोड़ा सा और इंडिपेंडेंट बनाने की जरूरत होगी। तो जो क्रिटिसिजम्स है हम उनके पॉइंट वो करते हैं। तो सबसे पहले 2026 यूएस इंडिया ट्रेड फ्रेमवर्क सेंटर्स ऑन व्हाट मेनी ऑब्जर्वर्स कॉल एन अनइवन एक्सचेंज। ये जो ऑब्जर्वर्स हैं ये एक्सपर्ट्स हैं इकोनॉमी के, फॉरेन पॉलिसी के, दूसरी बात के। While the deal reduced punitive US tariff to 50% to 18%, critics argued that India granted disproportionate concession in return. उनका ये कहना है कि भले ही इंडिया के जो टैरिफ लगाए गए थे 50% के, उससे इंडिया 18% पहुंच गया है, बट उसके बिहाफ में इंडिया ग्रांटेड अ डिसप्रपोर्शनेट कंसेशन इन द रिटर्न टू द यूएस। Now, Sanyukta Kisan Morcha (SKM) and other union described the deal as total surrender to American cooperations. I'll tell you why. संयुक्त किसान मोर्चा का मैंने प्रेस रिलीज पढ़ा था विच सेड कि आज से नहीं है, देयर आर लाइक there's been like 20-25 years, the American agriculture countries, agriculture companies and pharma countries, companies, they wanted to have access to the Indian particular goods, the Indian market, एंड इसलिए उन्होंने अमेरिका सॉरी ट्रम्प को इस तरीके से फोर्स किया कि हमें इस टाइप का वो मिले। उन्होंने आगे भी मेंशन किया कि दे वांट दैट द रिड्यूसिंग टैरिफ ऑन आइटम लाइक सोयाबीन ऑयल, ड्राई डिस्टिलरीज, ग्रेन्स, डीडीजीएस एंड फूड्स will undercut the domestic price and ruin the local livelihood। फिर शशि थरूर का एक स्टेटमेंट था जो मैंने यहाँ पे रखना जरूरी समझा, ही इज अ गुड एक्सपर्ट। उनका कहना है कि शशि स्लैम्ड द एग्रीमेंट फॉर लैकिंग रेसिप्रोसिटी। यस, उनका कहना है कि द एग्रीमेंट इज सपोज टू बी रेसिप्रोकल, इफ वी आर गेटिंग समथिंग दे आर गेटिंग समथिंग, बट यहाँ पे वी आर गेटिंग लेस एंड दे आर गेटिंग मोर, दैट इज नॉट समथिंग जो रेसिप्रोकल है। उन्होंने मेंशन किया इंडिया इज मूविंग टुवर्ड द नियर जीरो टैरिफ ऑन यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स। जो जिस तरीके से प्राइमरी फेज में फ्रेमवर्क में दिख रहा है, इंडिया जो है वो नियरली 0% टैरिफ लगाने वाला है ऑन इंडिया अमेरिकन इंडस्ट्रियल गुड्स, while US still maintains an 18% tariff on the Indian export, a rate higher than what competitors like Bangladesh faces, like 0% on the certain textile। अभी बांग्लादेश के साथ भी कल ही पर्टिकुलर डील फाइनल हुई है, परसों सॉरी, कल हमने न्यूज में पढ़ा था, राइट? तो ये पर्टिकुलर चीज जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम में है। अपार्ट फ्रॉम दिस, they mentioned the Global Trade Research Initiative (GTRI), है ना? उनका कहना है कि यूएस traded unsustainably and illegally punitive tariffs on for permanent deep market like India। तो उनका कहना है कि इंडिया में जिस तरीके के उन्होंने अनसस्टेनेबल और इलीगल टैरिफ्स लगाए हैं वो इंडियन मार्केट को काफी ज्यादा नुकसान कर सकते हैं।
नाउ जो GDRI है, ग्लोबल ट्रेड एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, दिस इज एन इंस्टीट्यूट जो ग्लोबल लेवल पे ट्रेड एंड रिसर्च ट्रेड को क्या करती है, रिसर्च करती है एंड उस पे रिसर्च डेवलपमेंट पेपर्स एंड बाकी सारी चीजें प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे क्रिटिसिज्म तो हो ही रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अनदर पॉइंट जो मैंने पहले भी निकाला था। द हेडलाइन ऑफ $500 billion परचेज फ्रॉम यूएस ओवर 5 years is viewed as unrealistic. Let's note that this would require more than doubling the annual import and many planned purchases like Boeing are made private airline, not to the government. राइट, सो अगर हम $100 बिलियन का इंपोर्ट करें पर ईयर, राइट, मैं ये कह रहा हूँ अब क्योंकि नेक्स्ट 5 years में $500 बिलियन का इंपोर्ट करना है, तो इवन इफ यू वांट टू परचेस नेक्स्ट लाइक 5 year $500 बिलियन, so we have to like more than double our purchase from the America. That doesn't look realistic. That doesn't look good because it will increase the trade deficit with the Americans. Moving on, तो ब्रह्मा शालिनी है, उनका आर्ग्यू है कि that tying tariff relief to the cessation to the Russian oil import, Washington has weaponized the trade to constrain India's foreign policy and strategic autonomy. ये एक बहुत क्रिटिकल स्टेटमेंट था जिसमें अपन ने डिबेट भी किया कि अगर अगर रशियन ऑयल इंपोर्ट सीज होता है तो वॉशिंगटन हैज ऑलरेडी वेपनाइज्ड द ट्रेड टू कंस्ट्रेन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। व्हाट इज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी? कि हम अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाते हैं, खुद डिसाइड करते हैं एंड जो पर्टिकुलर फॉरेन पॉलिसी है उस पर हम किसी का प्रेशर नहीं लेते। फॉर एग्जाम्पल, जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला है कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जो सीज फायर है वो मैंने करवाई, Indian government strictly replied that there was no pressure for any other government, right? जो बाहर से किसी टाइप के प्रेशर के बिना हमने वो सीज फायर वो किया। तो अगर वी आर बाइंग रशियन ऑयल एंड बिकॉज ऑफ दिस वन कंडीशन की अमेरिका टैरिफ रिड्यूस करेगा ओनली इफ वी रिड्यूस और वी लाइक स्टॉप बाइंग फ्रॉम रशिया ऑयल, स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया, दैट इज समथिंग जो कहीं ना कहीं इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को चैलेंज करने जैसा है। And this is the point in which the opposition is talking, the experts are talking, and even when the question is being asked to either a foreign minister or the minister of commerce like Piyush Goyal and Dr. S. Jaishankar, they are not replying it correctly. Then Nirmala Sitharaman, she was also giving an interview in which they asked कि क्या है, तो she said कि I'm not going to answer you directly on this, but I believe in my prime minister that he is going to take care of entire thing in favor of our agriculture or Russia, the like energy supplies, right? So nobody is answering it very fairly. Apart from this, रशिया की तरफ से, मॉस्को की तरफ से अभी 2-3 days back there is the statement that was given that reducing or halting the oil import from Russia to India is still not being notified. तब तक ना तो इंडिया ने नोटिफाई किया रशिया को कि हम ऑयल खरीदना बंद कर रहे हैं, ना रशिया ने ऐसा कोई इंटेंट दिखाया कि हम ऑयल बेचना बंद कर देंगे। तो देयर इज स्टिल लाइक कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। बट हाँ, अगर ऐसा होता है तो ये जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होती हुई दिखती है, क्योंकि पहले हमने ईरान लूज कर दिया एंड देन रशिया। तो ये देखने वाली चीज है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट क्या निकल के आता है। There are concerned that commitment to align to the US standards for medical devices and digital trade subordinate India's domestic regulatory regime to the American preferences. तो अभी हमारे पास एक डोमेस्टिक रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं जिसके हिसाब से हम मेडिकल सप्लाईज, मेडिकल डिवाइसेस, फार्मास्यूटिकल्स, डिजिटल ट्रेड जो है वो करते हैं। अगर हमने अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से करना शुरू कर दिया तो ऑल दीज आर गोइंग टू बी समहाउ व्हाट वी कैन से सप्रेस्ड, सबऑर्डिनेटेड, फिर वहां पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं जाएगा बिकॉज वी हैव टू इंपोर्ट एज वेल, राइट? तो कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर चीज है। बिगेस्ट कंसर्न दैट इज गोइंग टू बी, कुड द डील हर्ट फार्मर? क्या डील फार्मर्स को हर्ट कर सकती है? क्या एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रॉब्लम होगी? तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने प्रपोज किया, जो पीआईबी ने वो किया था, दैट वाज एग्रीकल्चर एक्सपांडिंग एक्सपोर्ट व्हाइल सेफ गार्डिंग द फार्मर। ये उनका पर्टिकुलर मोटिव था। Zero additional duty on Indian export worth of 1.36 billion US dollars. There is a farmer protection framework for this. Full protection on highly sensitive sectors, exemptions category. राइट, अब वो कौन से सेक्टर्स हैं, कौन से ग्रेन्स, गुड्स, डेयरी, इन सब में क्या क्या बातें होंगी, स्टिल देयर इज अ क्वेश्चन। लाइक calibrated tariff reduction to the selected sensitive products, phased elimination up to 10 years
for specific intermediates and immediate duty elimination limited to the non-sensitive products only. तो ऐसे particular products agriculture pharma के जो नॉन सेंसिटिव हैं उन्हीं में वो ड्यूटी रिडक्शन या एलिमिनेशन हुआ है. दे आर नॉट ऑन ऑल. दैट इज व्हाट दे सेड, राइट. अब क्या है आउटकम अगर उसमें बात करें तो बीबीसी हैड अ वेरी गुड आर्टिकल और उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स के साथ उन्होंने बात की थी कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या निकल के आएगा. तो द एग्रीमेंट हैज अपसेट द इंडियन फार्म यूनियन हु वांट द टैरिफ कट्स ऑन द यूएस एग्रीकल्चर इंपोर्ट कुड अंडरकट द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर. अब सीन ये है कि अगर मैं इंडिया एंड अमेरिका के फार्मर्स को थोड़ा सा वो करूं, कंपेयर करूं, तो इंडिया इज हैविंग 14 to 20 crore full time farmers, right? Americans on the other half, they are having close to 1 crore full time farmers. इनमें से 24-25 लाख ऐसे हैं जो रेगुलरली फार्मिंग एक्टिविटी में होते हैं, रेस्ट जो है वो फार्मिंग सबऑर्डिनेट एक्टिविटीज में होते हैं. सो ओवरऑल फैशन में देयर इज अ ह्यूज गैप. सेकंड थिंग, अमेरिकन फार्मर्स गेट 26 lakh direct cash help. That's what I'm saying. 26 lakh direct cash help. Indian farmer on the other half get Kisan Samman Nidhi of 6,000 rupees yearly, right? American farmer get the average subsidy of 66 to 75 lakh on all the products. Indian farmer get only 14 to 18,000 rupees, what we can say, subsidy on different particular things. चाहे वो वो क्या कहते हैं पेस्टिसाइड हो चाहे दूसरी चीजें हो. Then there are certain sectors in American agriculture which get actually 2.3 2.5 crore rupees help every year. इंडिया में ऐसे सेक्टर्स जो स्पेशल क्या कहना चाहिए उसके लिए भी बने हों, लाइक जो स्पेशल क्रॉप्स होती हैं या जो कैश क्रॉप्स होती हैं उसमें भी इतना नहीं मिलता. तो यस, अगर हाईली सब्सिडाइज्ड अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट will make to Indian market, local producers have to reduce their prices that might hurt their production and their livelihood. ये मानना है किसका? किसान संयुक्त मोर्चा का, राइट. उन्होंने और भी बात बोली कि दैट लेड द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कंट्रोवर्शियल फार्म लॉज इन 2020-2021 allowing the pre-import items such as dried distillery grains, soybean oil, red sorghum, nuts, fruits and other thing. उन्होंने पहले ही बोला कि पहले भी हम प्रोटेस्ट कर चुके हैं, वी विल डू इट अगेन. एंड आई थिंक आज संयुक्त किसान मोर्चा ने बंद और मोर्चा जो वो है प्रोटेस्ट उसका वो किया. It has demanded the resignation of the commerce minister and announced plans to intensify protest. उन्होंने सीधे तौर पे बोला है कि हमें कॉमर्स मिनिस्ट्री जो इन्वॉल्व थी इस डील में, कॉमर्स मिनिस्टर का हमें क्या चाहिए, रेजिग्नेशन चाहिए एंड वी आर गोइंग टू इंटेंसिफाई आवर प्रोटेस्ट. जो जीटीआरआई है, ग्लोबल ट्रेड एंड रिसर्च इनिशिएटिव, they also a lack of clarity on the additional agriculture product that have been included for the tariff cut agreement. मैंने बोला अभी भी दोनों कंट्रीज की तरफ से एक स्पेशल क्लियर कट स्टेटमेंट, क्लियर कट पर्टिकुलर वेरिएशन अभी तक देखने को नहीं मिला. फ्रेमवर्क वाला काम चल रहा है. इंक्लूजन ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड आइटम्स on the tariff reduction list could spark the domestic backlash as farmer group have warned for the price undercutting in the maize, soybean, dairy, nuts, systematic research and brokerage house and other particular thing. Then पीयूष गोयल की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया मैं उनकी बात बता दूं. He said India has not offered concession on dairy, genetically modified product, meat, poultry, and that safeguards the farmers are in places. He argued that the like जो agriculture है that will remain immediate, like that will need immediate help और वो remain रहेगा safeguard के within the safeguard, right, which they are seeing that full protection on the highly sensitive sectors. ओके, सो पीयूष गोयल जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं उनका अपना पर्टिकुलर आर्गुमेंट है, किसान संयुक्त मोर्चा का अपना पर्टिकुलर आर्गुमेंट्स है. जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी बोला है कि ये पहली बार नहीं है, हिस्ट्री में पहले भी इंडियन मार्केट को, इंडियन एग्रीकल्चर मार्केट को एक्सेस करने के लिए अमेरिकन कंपनीज ने अमेरिकन गवर्नमेंट पर प्रेशर डाला हुआ है, राइट. एंड दिस टाइम दिस माइट बी अ काइंड ऑफ सक्सेस फ्रॉम दैट साइड, बट किसान संयुक्त मोर्चा का कहना है कि हम ये होने ही नहीं देंगे, राइट. नाउ दैट कैन एक्चुअली गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट बिकॉज एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स आर दोज पीपल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे देश के लिए. चाहे गांधी जी हों, चाहे अटल जी हों, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, चाहे मोदी जी हों, दे ऑल आर एग्रीड ऑन वन पर्टिकुलर पॉइंट दैट इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री
majority of Indian population are associated with the agriculture and by agriculture services, right? So अगर agriculture hurt होती है तो this is going to be a backfire. Ah, last two things, right? uh, what question to ask? अगर मैं ओवरऑल गवर्नमेंट की तरफ से बोलूं कि इंडिया अनलॉक्स 30 ट्रिलियन मार्केट, फर्स्ट थिंग जो अगर बात करूं एक्सपर्ट्स ने वो किया वो ये है कि डू वी हैव कैपेसिटी टू कैप्चर दैट मार्केट, वी हैव दैट सॉर्ट ऑफ स्ट्रांग मैन्युफैक्चरिंग, हम ये बात बोल पाए कि वी अनलॉक द 30 ट्रिलियन डॉलर यूएस मार्केट। फिर तो इंडिया के एक्सपोर्ट हैं यूएस में 2024 में दैट वाज 86.35 बिलियन डॉलर, राइट? और अभी तो पर्टिकुलर रिलीफ्स एंड बाकी चीजें मिलेंगी उसमें बात करें तो जो मेजर टैरिफ रिलीफ है उसमें 40.96 बिलियन डॉलर जो ट्रेड हमने किया था वो 50% टैरिफ ले रहे थे जो अब 18% में आ जाएंगे या 0% में आ जाएंगे। एडिशनल स्ट्रक्चरल ड्यूटी फ्री 1.04 बिलियन डॉलर का अश्योर्ड जीरो रेसिप्रोकल ड्यूटी एक्सेस टू द एग्जेम्पटरी कैटेगरी एंड 20.38 बिलियन डॉलर सेक्शन 232 assured the zero reciprocal duty on the different use bias। तो उनका ये कहना है कि yes we have unlocked that particular thing, but experts का कहना है कि अनलॉक करने का मतलब ये है कि आप सीधे तौर पे ये बताओ कि भाई हमने हमारे पास इतनी कैपेसिटी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है या नहीं है। फिर द लास्ट 2-3 थिंग बिफोर द फाइनल आउटकम ऑफ दैट पर्टिकुलर डील केम आउट, इज इंडिया गिविंग मोर देन इट्स गेटिंग? ये एक क्वेश्चन है जो पूछना पड़ेगा। विल दिल्ली स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल? इसका भी अभी आंसर वो है। द लास्ट वन इज इंडिया इंडियाज 500 बिलियन डॉलर परचेस प्लेज इज रियलिस्टिक और नॉट? क्या हम कर सकते हैं? टोटल जो हमने इंपोर्ट किया है वो क्लोज टू आई गेस 750 किया है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो अगर हम 700 बिलियन डॉलर भी मान ले तो 500 बिलियन डॉलर का अगर हम परचेज कहीं बाहर से करने की कोशिश करेंगे तो हाउ इट्स गोइंग टू बी? तो है, दीज आर द क्वेश्चन दैट इज स्टिल टू बी आंसर्ड। क्या? क्योंकि इसके आंसर्स हमें नहीं मिले हैं, है ना? फार्मर्स वाला भी एक क्वेश्चन ऐड करना चाहता था बट वी हैड लाइक डिस्कस्ड इन डिटेल लाइक दैट पर्टिकुलर टॉपिक, तो हम उसको वो नहीं करेंगे। तो दिस वाज अ व्हाट द यूएस अमेरिका यूएस इंडिया ट्रेड डील जो हमने अभी उसमें देखा। अब नाउ यू अंडरस्टैंड कि हम जो बातें करना चाहते हैं, जो हमने बातें की हैं, उसमें सिंपली हमने सिर्फ और सिर्फ नॉन पॉलिटिकल फैक्चुअल बेसिस पे डिस्कशन किया है, राइट? इट्स नॉट गोइंग टू इट्स वी डिडंट डिस्कस एनी पॉलिटिकल एस्पेक्ट, है ना? किसने क्या बोला, ऑपोजिशन का क्या कहना है, गवर्नमेंट का क्या कहना है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मीडिया की मैंने बात भी नहीं की कि मीडिया ने उसको किस तरीके से देखा। एंड मैं आपसे भी चाहूंगा कि न्यूज चैनल्स वगैरह जो हैं उससे बिल्कुल भी नॉलेज ना लें, right? I went through several different articles, and whether that is the statement from White House, the PIB, the BBC, Business Line, and some other particular economics newspaper and articles, and then finally we get into the more factual part. So I hope you got what India America deal looks like for now, until unless we get the final deal to be signed, right? Framework कैसा लग रहा है ये आपको समझ में आया हो? I hope you got why the deal is being criticized more in India, right? And how the things are looking. And let's hope for the best कि we get the best deal out of it. हमारे farmers compromise ना हो या दूसरी चीजें हो. And I believe कि Indian government is not going to put the farmers or any other particular sector at risk, क्योंकि हम दुनिया की fastest growing major economy है, fourth largest economy है, तो थोड़ा सा हमारे पास benefit है। Next, there are people who are comparing our economy and export with the different countries. हमें उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने ही लेवल पे कॉम्पिटिटिवनेस जो है ना उसको समझें, राइट? तो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट? टिल देन आई विश यू अ गुड हेल्थ, गुड मेंटल हेल्थ। मज़े करो, पढ़ाई करो, एंड लाइफ में मस्त रहो, पढ़ाई में व्यस्त रहो।